A very good morning to all of you. This is Abhilasha Hata, your social science teacher. And today we are going to discuss about parliament and why do we need a parliament? What are the chambers of parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha, which you have already studied about in your earlier classes. So we will discuss basically about parliament today. Okay, so first of all, what is a parliament? As you all know, in all democracies, an assembly of elected representatives exercise supreme political authority on behalf of the people. Now, just look at these statements. Elected representatives. Who are the elected representatives? Member of legislative assemblies और member of parliament, जिसे हम MLA और MP बोलते हैं, ठीक है? और कौन choose करते हैं? Who chooses them? Who elected them? People chooses them. People elected them in any democracy. Okay, so an assembly of elected representatives exercises supreme political authority. Why supreme political authority? Why they have the final authority and the real political authority, real power with them? Why they exercises political authority, supreme political authority? Because they are because they are chosen by people. They represent people, okay, and they exercises their power on behalf of the people. Okay, that's why they are they exercises the supreme political authority, because democracy is equals to people. Rule of people, rule for people, and rule by people. Okay, so in national assembly of elected representatives is called parliament. अब जैसे नेशनल असेंबली है, ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की, जब जैसे कि लोकसभा के चुनाव आप बोलते हो, तो वो क्या है? वो पार्लियामेंट है, राइट? सो नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इज कॉल्ड पार्लियामेंट, एंड दिस इज इन इंडिया. In India, National Assembly of Elected Representative is called Parliament, and at the state level, this is called Legislature or State Legislative Assembly, or you can say विधान सभा. ठीक है, स्टेट लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो इसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं या लेजिस्लेचर बोलते हैं, और या फिर विधानसभा भी बोलते हैं हम अगर इंडिया की बात करते हैं तो. और नेशनल असेंबली, नेशनल लेवल पे हम क्या बोलते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को? पार्लियामेंट. ठीक है, नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इज कॉल्ड पार्लियामेंट. ठीक है, नाउ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सम एग्जाम्पल्स ऑफ जैसे कि पार्लियामेंट ऑफ रशिया, उनके रीजनल लैंग्वेज में देखते हैं तो पार्लियामेंट ऑफ रशिया को क्या बोलते हैं? डूमा बोलते हैं, डूमा. पार्लियामेंट ऑफ जापान, नेशनल डाइट. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एज यू ऑल नो, संसद बोलते हैं हम. तो जस्ट लाइक दैट, रिमेंबर वन थिंग इन आवर लास्ट क्लास, इन आवर earlier chapters, in our earlier chapter of history, that is Nazism and the rise of the Hitler, I told you about the Parliament of Germany. Parliament of Germany is known as Reichstag, and you have to find out the name of the Parliament of Pakistan. I will ask you tomorrow what Parliament of Pakistan is known as. Okay, this is your homework. So this is basic information what is a parliament. Okay, now the main question, which is very important, why do we need a parliament? Okay, so the answer for this question is, as you all know, it exercises political authority on behalf of the people in many ways. Okay, political authority, supreme political authority, it is the parliament exercises the supreme political authority, you can say wholesome authority, and you can say final authority on behalf of the people. Okay, because uh, people represent their representatives. Okay, and they work in the parliament. Okay, so अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि पार्लियामेंट में क्या क्या चीजें आती है. फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss why do we need a parliament. So this is the answer. Okay, Parliament is the final authority for making laws in any country. Now just look at this statement. Parliament.
किसी भी कंट्री में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो सुप्रीम, और यू कैन से द सुप्रीम पावर, द होलसम पावर और द फाइनल पावर जिसके पास है लॉज बनाने की, वो किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास होती है। ठीक है, पार्लियामेंट क्या करती है? इट मेक्स लॉज, दिस इट मेक्स लॉज, change existing laws or abolish them and can make new laws in their place। अब देखिए, पार्लियामेंट जो है वो नए लॉज बना सकती है। अब जैसे कि अभी कोई नया लॉ आ गया, सपोज मैंने आपको कल जैसे जीएसटी, ठीक है, जीएसटी का एक लॉ आ गया था, राइट? जस्ट लाइक दैट आप अभी बोल सकते हो फार्मर्स बिल के लिए भी बोल सकते हो। तो फार्मर्स बिल क्या है? एग्जिस्टिंग फार्मर का कोई लॉ था, ठीक है, फार्मर्स बिल थे, बट उसको चेंज कर सकते हैं। तो उसकी पावर किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास होती है। बट वो अभी बिल है, अभी प्रेसिडेंट ने एसेंट नहीं दिया है कि हम आपको फुल पावर दे रहे हैं। तो पार्लियामेंट can make laws, change existing laws और abolish them and can make new laws in their place। और उनको abolish भी कर सकते हैं और उनकी जगह न्यू लॉ भी बना सकते हैं। आपको एक एग्जांपल और दूंगी, जैसे कि पहले जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो क्या था? आपका फंडामेंटल राइट था। बट जो आपका 1978 में, आई थिंक 1978 और 1972 में जो अमेंडमेंट हुआ था, इन दोनों में से एक डेट है, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया था? फंडामेंटल राइट से हटा के उसको लीगल राइट दे दिया। कि उन्होंने क्या किया? उस लॉ को चेंज कर दिया कि इट इज नॉट योर फंडामेंटल लॉ नाउ, इट इज योर लीगल लॉ। ठीक है, और इसके अंदर और भी दूसरे लॉज बना दिए। सो जो एक पार्लियामेंट है उनके पास क्या है? सुप्रीम अथॉरिटी होती है, सुप्रीम पावर होती है और फाइनल अथॉरिटी होती है कि वो लॉज बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, आप बोल सकते हो ये फंक्शन भी है और ये पावर भी है और हमारी नीड भी है कि हम व्हाई डू वी नीड व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से अराइज हो सकता है, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, what are the supreme features of the parliament। तो ये आंसर आपका यही आना है। क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, second, to exercise control over the working of the government। Now just look at this statement very carefully, parliament exercise control over the working of the government। अब देखिए, if गवर्नमेंट बन चुकी है, ठीक है, मेजोरिटी में जो गवर्नमेंट आई वो बन चुकी है। अब बनने के बाद ऐसा ना हो कि वो आर्बिट्रेरी तरीके से, मतलब कि अपने मनमानी तरीके से वो गवर्नमेंट क्या करे? रन करे, डिक्टेटरशिप करने लग जाए। तो गवर्नमेंट क्या करती है? पार्लियामेंट क्या करता है? जो भी गवर्नमेंट मेजोरिटी में बनती है उसमें कुछ कंट्रोल रखती है। ठीक है, those who run the government can take decisions only so long as they enjoy support of the parliament। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे प्रेजेंट में इंडिया में किसकी गवर्नमेंट है? भाजपा की गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट तब तक ही रह सकती है जब तक उनको पार्लियामेंट का सपोर्ट है। एज यू ऑल नो, पार्लियामेंट में जो जो भी मेजोरिटी पार्टी है उसको कितना टोटल सीट्स कितनी चाहिए? 272 मेजोरिटी। ठीक है, 272 मिनिमम है, 272 प्लस सीट्स चाहिए लोकसभा में। ठीक है, तभी उनका सपोर्ट चाहिए पार्लियामेंट का। अगर पार्लियामेंट ने सपोर्ट नहीं किया, पार्लियामेंट में जो मेंबर्स हैं, ठीक है, पार्लियामेंट अभी हम पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट इज कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ठीक है, एंड प्राइम मिनिस्टर। तो 272 प्लस मेंबर्स होने चाहिए। तो अगर वो सपोर्ट में नहीं है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? हट सकती है। इसलिए गवर्नमेंट जो है अपने मनमाना तरीके से गवर्नमेंट नहीं चला सकती। दे हैव टू रन द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, now third point is to control the expenditure of the public of the government and control public money। अब now the final authority, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि हमारे जितना भी टैक्स जाता है और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया है, वो उससे जो पैसा जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ एक फाइनेंस मिनिस्टर है,
नॉट फाइनेंस मिनिस्टर, आई वुड से कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, ठीक है। अब उनको किसी एम्बेसी के लिए वर्क करना है एंड दे नीड फंड्स, ओके। तो वो क्या करेंगे, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से उन्होंने उनको जितना फंड चाहिए ले लिया। ऐसा नहीं होता है कि अब क्या करती है वो गवर्नमेंट जो है सारी चीजें मांगेंगी कि आपको इतना फंड क्यों चाहिए, पब्लिक उनसे पूछेगी कि इतना फंड क्यों चाहिए। अब पब्लिक पूछेगी मतलब क्या है, पब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, पब्लिक ने जिसे चूज किया है, वो उनसे पूछेगी कि आपको इतना फंड क्यों चाहिए। और अगर वो फंड सही चीज के लिए है तभी वो फंड क्या करते हैं, उस मिनिस्ट्री के पास, पर्टिकुलर जो भी मिनिस्ट्री है उसके पास सैंक्शन होता है। तो गवर्नमेंट, पार्लियामेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट के जितना भी बजट निकालता है, बजट निकालते हैं, आप सुनते हो कि हर साल एक बजट निकलता है, ठीक है, कि एजुकेशन में हम इतना पैसा डालेंगे, हम एग्रीकल्चर में इतना पैसा डालेंगे, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, या फिर टेक्नोलॉजी में इतना पैसा डालेंगे। हर चीज का हर साल एक बजट निकलता है, राइट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस एक्सपेंडिचर, जो भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, जो भी बजट निकलता है या पब्लिक का जो मनी है, पार्लियामेंट उसको क्या करती है, पार्लियामेंट ही सैंक्शन करती है। और अगर पार्लियामेंट को लगता है कि ये पैसा सही तरीके से यूज नहीं हो रहा है या फिर इसमें इस फील्ड में पैसे की जरूरत नहीं है, तो वो कंट्रोल भी करती है। तो पार्लियामेंट का सैंक्शन जो है वो रिक्वायर होता है पब्लिक मनी को स्पेंड करने के लिए। बजट इज नीडेड टू बी अप्रूव्ड इन पार्लियामेंट। जो भी आप XYZ बजट निकाल रहे हो उसको अप्रूवल मिलनी पार्लियामेंट से बहुत ज्यादा क्या है, जरूरत है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, as the highest forum of discussions and debate, it decides public issues and national policies. Now देखिए, पार्लियामेंट जो है हाईएस्ट फोरम माना जाता है, हाईएस्ट प्लेटफॉर्म माना जाता है कि हमें अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री में कोई एक इशू हो गया, फॉर एग्जांपल आप यही ले लीजिए कि जम्मू एंड कश्मीर, जैसे जम्मू एंड कश्मीर को वो बनाया गया था कि अब जम्मू एंड कश्मीर और लेह और लद्दाख जो है अलग अलग टेरिटरीज होंगी, यूनियन टेरिटरीज होंगी, ना कि वो क्या होंगी, ना कि एक स्टेट रहेगी। तो अब ये क्या है, अब यहाँ पे डिसाइड, बहुत से डिबेट्स हुए, बहुत सारे लोग इसके फेवर में थे, बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट में थे। तो जितने भी पब्लिक इश्यूज हैं, तो ये हाईएस्ट प्लेटफॉर्म माना जाता है कि पब्लिक इश्यूज को डिस्कस करने के लिए जो हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है। तो अगर कोई नेशनल पॉलिसी बन रही है, अभी जैसे बहुत रिसेंट है फार्मर्स बिल की, तो इस पे ये एक नेशनल पॉलिसी ही है, ठीक है, बन रही है। तो इस पे जो डिबेट चल रहा है वो कहाँ पे होता है, पार्लियामेंट में होता है, ठीक है। सो पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसी आर डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट। So these are the four powers, or you can say these are the four features of the parliament. And why do we need a parliament? These are the four important things, as you see कि इनके पास जितने भी लॉ बन रहे हैं तो उसमें सुप्रीम अथॉरिटी किसकी होनी चाहिए, पार्लियामेंट की होनी चाहिए। और गवर्नमेंट, कोई भी मेजोरिटी में गवर्नमेंट बन चुकी है। अब आप बोलोगे मैम मेजोरिटी में तो गवर्नमेंट बन गई है, तो अगर गवर्नमेंट बनने के बाद वो अपने मनमानी आर्बिट्रेरी तरीके से वो काम करने लग जाए, तो ये भी तो सही नहीं है। तो गवर्नमेंट के वर्किंग में भी क्या करती है, कंट्रोल रखती है पार्लियामेंट, क्योंकि गवर्नमेंट तब तक ही है जब तक सपोर्ट है पार्लियामेंट का। अगर पार्लियामेंट का सपोर्ट हट गया गवर्नमेंट से, तो वो गवर्नमेंट भी क्या होगी, चली जाएगी। नेक्स्ट, जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, अब देखिए सारी इंपॉर्टेंट चीजें इनमें आ रही है, और ये चार पावर है, मतलब चार ऐसी पावर है, चार ऐसे नीड्स हैं जिसमें सारी चीजें कवर हो जाती है। तो जो भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है उस पे कंट्रोल रखती है, कि ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा आ गया और आपने अपनी मनमानी तरीके से क्या कर दिया, उसको यूज कर लिया। नहीं, पार्लियामेंट अगर सैंक्शन नहीं करती है तब तक, जस्ट अ मिनट बेटा, ओके, पार्लियामेंट जब तक उस पैसे को, फॉर एग्जाम्पल वॉट एवर द XYZ बजट निकाला है, अगर वो पार्लियामेंट सैंक्शन नहीं करती है तब तक आप वो पैसा नहीं क्या कर सकते हो, यूज नहीं कर सकते हो। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर पे भी कंट्रोल रखती है। एंड
जितनी भी कंट्री में कोई नेशनल पॉलिसी है या फिर कोई भी एक इशू आ रहा है, तो वो सबसे पार्लियामेंट जो है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबसे हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये डिबेट्स और डिस्कशंस चलते हैं. सो दीज आर द फोर powers, or you can say need of the why do we need a parliament. ठीक है. Now next topic is two houses of parliament. Now parliament are divided, mainly parliaments are divided into two parts, and this is known as chamber of houses. Okay, so what are the chamber of houses? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 1 मार्क में आ जाता है. नेम टू chambers of houses. Then Lok Sabha and the Rajya Sabha are the two chamber of houses. Okay, and it consists of, Indian Parliament is also consists of Lok Sabha, Rajya Sabha, President and Prime Minister, but two main bodies, or you can say two main houses, are Lok Sabha and the Rajya Sabha. Okay, now just look at this. Here I wrote 543 plus 2 equals to 545. 545. What is this? It is the constituency. Members of the Lok Sabha, there are 543 members. In your last class, we have discussed there are 543 constituencies. But why I wrote this two, extra two? तो आप अपनी फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे. ये जो 2 सीट्स है ये एंग्लो इंडियंस के लिए रखे गए हैं. ठीक है, एंग्लो अब फर्दर क्लासेस में इसको बहुत डीपली पढ़ेंगे कि ये एंग्लो इंडियन सीट्स वगैरह क्यों रिजर्वेशन रखी गई है. बट अभी के लिए आप यही ध्यान रखिए कि जो 2 सीट्स हैं वो किसके लिए होती है, एंग्लो इंडियंस के लिए रखी गई है. बट राइट नाउ इट इज 543. And what are the how many members are there in Rajya Sabha? There are 233 plus 12 equals to 245 members. Now 233 members, uh, which is indirectly elected. Okay, अभी हम पढ़ेंगे ये टॉपिक. इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं. कौन इलेक्ट करता है? मेंबर्स, एमएलएज, एमपीज जो हैं वो इन्हें इलेक्ट करते हैं. और जो 12 मेंबर्स हैं उनको कौन इलेक्ट करता है? उनको नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी सचिन तेंदुलकर, यू ऑल आर वेरी मच अवेयर अबाउट सचिन तेंदुलकर. सो सचिन तेंदुलकर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है? नॉमिनेट किया है, एंड ही इज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा राइट नाउ. ओके, तो 12 पर्सन जो हैं वो नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये इन सारी चीजों को, फ्लोरा एंड फौना, जोग्राफिकल एरियाज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सारी चीजों को देखते हुए क्या करते हैं? नॉमिनेशंस जो होते हैं, प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज करते हुए क्या करते हैं? 12 मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं राज्यसभा में. ठीक है, जो लोकसभा है बेटा, इट हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड इज द हाउस ऑफ पीपल एंड एक्सरसाइज रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ पीपल. इट हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. अभी लास्ट 2019 में इलेक्शंस हुए थे. ठीक है, कौन से इलेक्शंस थे आपके? लोकसभा के इलेक्शंस थे, आप बोलते हो. ठीक है, तो जो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल, इसको हाउस ऑफ पीपल क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये जो हम 543 मेंबर्स चूज कर रहे हैं वो पीपल जो है डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर रहे हैं. ठीक है, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए जो लोग हैं, जो पीपल है, इंडिया की पॉपुलेशन है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर रही है डायरेक्टली बाय गिविंग vote. Okay, and they exercise the real power. Why? Because they represent people. They represent people and they have the power on behalf of the people. They say a word, they take decisions on behalf of people. Okay, now राज्यसभा. अब देखिए बेटा, राज्यसभा जो है इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ईच स्टेट असेंबली. जितने भी एमएलएज होते हैं, एमपीज होते हैं, वो क्या करते हैं? जो स्टेट असेंबली है, सॉरी, एमएलएज जो हैं वो इनको इलेक्ट करते हैं. ठीक है, अब एमएलएज को कौन चूज कर रहा है? हम चूज कर रहे हैं. और एमएलएज हमारे बिहाफ पे कि किसे चूज कर रहे हैं?
राज्यसभा के मेंबर्स को। तो ये इलेक्शन हो गया इनडायरेक्टली इलेक्टेड, इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया, ठीक है। It is also called the House of People. Why? Because people directly choose the members of the Lok Sabha. That's why it is also called the House of the People. And Rajya Sabha is also called the Council of States. Why? Because the important matters are देखिए, important matters of states are discussed here, ठीक है। राज्य सभा, राज्य का मीनिंग क्या है? स्टेट हो गया। तो स्टेट सभा, अगर इंग्लिश में हम हिंदी में देखते हैं राज्य का मीनिंग, अगर इंग्लिश में इसका मीनिंग देखते हैं राज्य का, तो क्या है? स्टेट है। तो स्टेट मतलब जो मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, मेन डिस्कशंस हैं, स्टेट से रिलेटेड जो डिस्कशंस हैं, फंक्शंस हैं, ठीक है, वो लुक आफ्टर करती है। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ओके, नाउ more important in money matters. Now what they discuss, they are more important in money matters. अभी हम इनको डिस्कस करेंगे कि which house has supreme power। तो उसमें अभी आगे आगे के स्लाइड्स में डीपली डिस्कस करने वाले हैं हम ये। more important in money matters, control over the executive and councils of ministers, has more members and also called lower chambers, ठीक है। अब देखिए, मनी मैटर्स हो गए, एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल कैसे करना है, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कैसे करना है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल में रखना है, उनके मेंबर्स कितने होंगे, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैज मोर मेंबर्स। तो ये सारी जो पावर्स है अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। ये सब से रिलेटेड जितने भी डिस्कशंस होते हैं, जितने भी डिसीजंस होते हैं या फिर इंपॉर्टेंस रखते हैं, फंक्शंस जो हैं वो लोकसभा के होते हैं और इनको हम लोअर चैम्बर्स भी बोलते हैं। अब आप बोलोगे मैम इसको लोअर चैम्बर क्यों बोलते हैं? लोअर चैम्बर जस्ट बोलने के लिए बोला जाता है, ठीक है, कि ये लोअर चैम्बर्स हैं, ठीक है, और जस्ट फॉर द बहुत टाइम से चलता आ रहा है, ऐसा कोई इसका पर्टिकुलर लॉजिक नहीं है कि इसको लोअर चैम्बर और राज्यसभा को अपर चैम्बर क्यों बोला जाता है, ठीक है। नाउ राज्यसभा परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस सच एज look after the interest of various states, regions or federal units, ठीक है। It performs special functions such as जितने भी स्टेट्स के इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ठीक है, जैसे कि वेरियस स्टेट्स के बहुत सारे क्या डिसीजंस लेने हैं स्टेट से रिलेटेड की इस स्टेट में क्रॉप्स कितनी होगी या व्हाट एवर डिसीजंस, स्टेट से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस है रीजन से और फेडरल यूनिट से रिलेटेड, तो उनके मैटर्स में ये बहुत ज्यादा क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। नाउ इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, लोकसभा एक ये दिस बॉडी इज नॉट परमानेंट, ओके, एंड इसका जो टेन्योर है वो कितना है, 5 years का टेन्योर है और हर 5 years में जो है इलेक्शंस होते हैं और लोकसभा के मेंबर्स को चूज किया जाता है, ओके। नाउ राज्यसभा जो है इसको हम परमानेंट हाउस बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इस हाउस में राज्यसभा में क्या है, हमेशा कोई ना कोई मेंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, with 1/3 members retiring every 2 years. The term for each member is 6 years. अब आप बोलोगे मैम the term for each member is 6 years और 1/3 members हर 2 साल में, बहुत कंफ्यूजिंग सा लगता है ये। तो इसको परमानेंट हाउस भी बोला जा रहा है और यहाँ पे रिटायर भी हो रहे हैं और टर्म भी जो है 6 years का है। तो ये क्या है, तो देखिए राज्यसभा में क्या होता है बेटा, एज यू ऑल नो लोकसभा जो है परमानेंट बॉडी नहीं है, ठीक है। अगर लोकसभा में जितने भी डिस्कशंस लिए जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, या प्राइम, अभी आपको मैं आगे बताऊंगी कि अगर पार्लियामेंट जो है सपोर्ट में नहीं है प्राइम मिनिस्टर के और जितने भी मिनिस्टर्स के, तो कभी कभी ऐसा होता है लोकसभा में एक भी मेंबर नहीं है और जब तक वो वेकेंट रहती है सीट, तब तक अगर हो सकता है कंट्री में कोई ऐसी मुसीबत आ जाए या कंट्री में हमें एक डिसीजन लेने की नौबत आ जाए, तो या लॉ बनाने की नौबत आ जाए, तो उस टाइम पे टेम्पररी कौन बनाता है वो लॉ, वो राज्यसभा बनाता है, ठीक है। तो ये परमानेंट हाउस इसलिए क्योंकि जो 1/3 मेंबर है टोटल, अगर हर 2 साल में 1/3 मेंबर को रिटायर करते हैं, ठीक है, और जो आपका 2/3 मेंबर्स हैं वो उसी बॉडी में रहते हैं, 2/3 मेंबर्स जो हैं
वो उस टाइम पे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं दिखाती हूँ एक पिक्चर के थ्रू, ठीक है, मैं ड्रॉ करती हूँ। सपोज दिस इज राज्यसभा, ठीक है। नाउ अब तीनों को 3 पार्ट्स हो गए। अब हर 2 साल में क्या करेंगे, 1/3 मेंबर्स को रिटायर कर देंगे। तो ये जितने भी टोटल मेंबर्स कितने हैं, 245 मेंबर्स है ना, तो 245 में से 1/3 मेंबर को रिटायर कर दिया, ठीक है। अब अगर हो सकता है कि उस टाइम तक अगर कोई अपॉइंटमेंट नहीं भी हुई, तो एग्जिस्टेंस में कौन है राज्यसभा में, ये 2/3 जो मेंबर है वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में है। तब तक कुछ टाइम में क्या है, ये मेंबर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ के जो मेंबर्स है। फिर 2 साल के बाद इस वाले इनको क्या कर दिया, रिटायर कर दिया। तो जब तक पोजीशन ये वेकेंट है, तब फिर भी यहाँ पे क्या है, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट है राज्यसभा में। तो कोई भी सिचुएशन हो, राज्यसभा में, राज्यसभा को परमानेंट हाउस इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे हमेशा मेंबर्स जो है प्रेजेंट रहते हैं। और यहाँ पे जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं उनका जो टेन्योर होता है, ठीक है, वो कितने कितने साल का होता है, वो 6 इयर्स का होता है, ठीक है। नाउ आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि राज्यसभा और लोकसभा में। अभी हम राज्यसभा, लोकसभा इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, अभी हम ये क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। बट देखिए बेटा, थर्ड चैम्बर जो हम बात करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। 2 हाउसेस की बात कर ली, लोकसभा एंड राज्यसभा आर द parts of parliament. President is also a part of parliament, although she is not a member of either house, but her assent is required in law making process. वो किसी भी पार्लियामेंट में वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है ना, वो राज्यसभा के मेंबर है, ना ही वो लोकसभा का मेंबर है। उसे बट कोई भी लॉ बनता है तो हमें प्रेसिडेंट की एसेंट की, प्रेसिडेंट के अगर प्रेसिडेंट ने ना कर दिया तो वो लॉ नहीं बनता है। प्रेसिडेंट की हाँ की जरूरत होती है, एसेंट की हमें जरूरत होती है, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन और अराइज होगा, मैम आपने यहाँ पे शी ही क्यों लिखा है, ही क्यों नहीं लिखा है। ये दिखाना चाहता है कि शी इट मींस कोई भी यहाँ पे जो है, एक वुमेन भी जो है प्रेसिडेंट की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर सकती है, ठीक है। वी आर गिविंग लाइक एनसीईआरटी बुक में भी इसको इसलिए लिखा गया है, वी आर गिविंग respect to women. So that's why President of India is is a part of the Parliament, but she is not a member of either house. But her assent is also required in law making process. That's why it is the member. It is you can say the part of the Parliament. Okay. Now your question is who was the uh, who was the first woman president of India. You can also say ki who was the first and the last president of India till now. Pratibha Gandhi, sorry, Pratibha Patil. She was the first and only woman president till now in India. ठीक है, Pratibha Patil. Okay. Yes, so just look at these pictures. Lok Sabha, this is the green. देखिए जो कारपेट है वो ग्रीन लिखा बनाया गया है, तो ये लोकसभा हाउस है। अगर कभी मौका मिले आप पार्लियामेंट जा सको, इंडियन पार्लियामेंट संसद भवन जा सको, तो जाके कभी देखने का मौका मिले तो जरूर देख के आइएगा। आप लोकसभा देख सकते हैं। इट्स अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, मेरा एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा था, मैंने एक लोकसभा देखी है। एंड दिस पिक्चर इज द राज्यसभा, ये राज्यसभा की पिक्चर है, ठीक है। सो योर क्वेश्चन इज हु इज द स्पीकर ऑफ present speaker of Lok Sabha? Who is the present speaker of Lok Sabha? Who will answer me this question? The present speaker of Lok Sabha is Mr. Om Birla, okay, and before that Mrs. Sumitra Mahajan, who was the you can say Sumitra Mahajan was the former speaker of Lok Sabha. Before Om Birla, she was the speaker of Lok Sabha. And now your next question is, who is the
you can say chairman or speaker of Rajya Sabha. Mr. M. Venkaiah Naidu is the Speaker of the Rajya Sabha, and as well as he is the Vice President of India. Okay, so class, your next question, your next topic is which of the house, Lok Sabha and Rajya Sabha, is more powerful? ठीक है, क्वेश्चन अराइज हो जाता है कौन सा हाउस, विच ऑफ द हाउस, लोकसभा और राज्यसभा इज मोर पावरफुल, और यू कैन से लोकसभा एक्सरसाइजेस सुप्रीम पावर, एक्सप्लेन। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में अराइज हो जाता है तो लोकसभा को, दैट इज ऑल्सो नोन एज द लोअर चैम्बर और लोअर हाउस, ठीक है, वो सुप्रीम क्यों है, ज्यादा पावरफुल क्यों है? So during joint sessions the view of the Lok Sabha is likely to prevail। ठीक है, अब देखिए, हो सकता है कोई भी लॉ बनता है, ठीक है, उसमें अब दोनों ही हाउसेस का एसेंट होना जरूरी है, बिकॉज बोथ आर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड ओके, एंड दोनों ही हाउसेस का जो अप्रूवल है वो होना जरूरी है। बट समटाइम्स ऐसी सिचुएशंस अराइज हो जाती है जब दोनों जो हाउसेज हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, मतलब वो लोग अप्रूव नहीं करते हैं, उनके जो डिसीजंस होते हैं लोकसभा के, वो उन्हें अप्रूव नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रेसिडेंट जो है उनका एसेंट होना जरूरी है। प्रेसिडेंट भी जो है पार्लियामेंट के जो है, आप बोल सकते हो पार्ट है। तो पार्लियामेंट उस टाइम पे प्रेसिडेंट क्या करती है, उस टाइम पे प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को बुलाती है और उनका जॉइंट सेशन, ठीक है, साथ में बैठाती है और उनका जॉइंट सेशन होता है। So during joint session, the view of the Lok Sabha is likely to prevail. Joint session में mostly क्या होता है, लोकसभा का ही जो है व्यू पॉइंट जो है प्रिवेल होता है या माना जाता है। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स। राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं, 243 प्लस 243 और 245 मेंबर्स हैं, ठीक है, और इन लोकसभा देर आर 543 और यू कैन से 545 मेंबर्स हैं। बट तो लोकसभा जो है वहां के मेंबर्स ज्यादा हैं, तो ऑब्वियसली जो लोकसभा की जॉइंट सेशन में जो लोकसभा का प्रिवेल होगा, ठीक है, लोकसभा का जो डिसीजन होगा वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज ऑफ द मेजोरिटी। ओके, सो दैट्स व्हाई लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। Now next point, that why Lok Sabha is more powerful than Rajya Sabha, because it exercises more powers in money matters। जितने भी money matters हैं, ठीक है, उसका जो कंट्रोल है वो किसके पास है, लोकसभा के पास है। Once the Lok Sabha passes the budget of the government or any other money related law, the Rajya Sabha cannot reject it। The Rajya Sabha can only delay it by 14 days or suggest changes in it। The Lok Sabha may or may not accept these changes। Okay, अब देखिए आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लोकसभा है उनको ज्यादा पावर, मनी मैटर में भी ज्यादा पावर दी गई है। क्यों, अब जो भी बजट लोकसभा पास करती है, ठीक है, गवर्नमेंट, लोकसभा पासेस द बजट ऑफ द गवर्नमेंट या मनी रिलेटेड कोई भी जो बजट पास कर रही है, उसमें राज्यसभा उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती है, बस 14 डेज के लिए उसे डिले कर सकती है या कुछ चेंजेस जो है उसमें सजेस्ट कर सकती है। बट लोकसभा उसे एक्सेप्ट करे उन चेंजेस को, ये कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, नाउ द थर्ड पॉइंट, द लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा जो है कंट्रोल करती है सारे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स को और प्राइम मिनिस्टर्स को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को, क्यों, क्योंकि उन्हीं के वजह से, उन्हीं के सपोर्ट के वजह से जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं। सो ओनली अ पर्सन हु एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स, मेजोरिटी कहाँ पे है, लोकसभा में है, तो ओनली अ पर्सन हु एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स इन द लोकसभा say Lok Sabha, once a minute beta, if the majority of the Lok Sabha members say they have no confidence in the councils of minister, all ministers including
prime minister have to quit. The Rajya Sabha does not have this power. अब देखिए, नो कॉन्फिडेंस, कुछ टाइम पहले आपका लास्ट टेन्योर जो था लोकसभा का बीजेपी गवर्नमेंट के, उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन आया भी था, अगर आपने न्यूज को फॉलो अप किया है तो लोकसभा के मेंबर्स के पास ये पावर आती है, उन्हें अगर ऐसा लगता है कि जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं और जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको लगता है कि नो कॉन्फिडेंस, मतलब कि ये कंट्री को गवर्न नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट को गवर्न नहीं कर सकते हैं, then they have the power of they have the power of no confidence and they have to sign that letter. Okay, और अगर सारे मेंबर्स उसमें अप्रूव करते हैं, उसको सही मानते हैं, ठीक है, सपोर्ट करते हैं इस चीज का, तो जितने भी मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर हैव टू क्विट, उन्हें जो गवर्नमेंट है वो क्या करनी होती है, क्विट करनी होती है। बट इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का भी एक प्रोसेस है, ठीक है, बट राज्यसभा के मेंबर्स को ऐसी कोई भी पावर नहीं दी गई है। तो दैट्स व्हाई दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा. So class, this is all about today. Please go through this topic of parliament, and if you find any problem, you can approach to me in my next class. Thank you so much for listening to me.